Okay, so today's topic is MySQL. We will focus especially on constraints, how to apply constraints while creating a table. So MySQL constraints. A constraint is a kind of limitation or restriction. Last time also we discussed little bit about constraints. MySQL constraints are used to define some rules that limit the data that can go into a table. With the help of constraints, we can basically maintain the accuracy and integrity of data inside the table. For example, we do not want duplicacy of data, especially in case of roll number, account number, etc. So this can be applied by using primary key. There are two types of constraints. MySQL constraints are of two types: column level constraints and table level constraints. First, see column level constraints. The constraints which are applied only to a particular column of the table and limits only column data, that are called column level constraints. We will see in an example of all this. Table level constraints, the constraints which are applied to the whole table and limits the whole table data are called table level constraints. Today we will discuss column level constraints only. Table level constraints we will discuss after exams. So following are some most common MySQL constraints. Not null, unique, primary key, foreign key, check and default. We will not discuss foreign key right now. Okay. So these are some glimpses of screenshots of practical. So when you enter password in MySQL, this message comes. First, you can see MySQL, it will be blank. After that, you have to write show databases, not necessarily. Show databases command is used to display a list of databases already created in your computer. So we can see information schema, MySQL, school, test. This school database has already been created. Now I am going to create a table inside this school. So what I have to do, I have to open this database. So I will write use school. So use school is used to open a database. Database changed. ये message आ जाएगा. It means you are now inside use school. Now for example, you need to display list of tables. Show tables. This is the command. You can see there are some tables: EMP, sample, student 10th A, student 10th B, already created. Clear. Now let us create a table with constraints. Create table student, roll number, int 3, not null. See, this is your first constraint. And then primary key. So by applying primary key, what will happen? This roll number will stop the duplicacy of data. It means now we cannot enter two same row numbers. That is why we apply primary key. It is compulsory. Not null means inserting data in row number is compulsory. I think it is clear. Now as name varchar 20, there is no constraint applied here. जो मैं underline कर रहा हूँ, that are constraints. Fees decimal 7,2. It means maximum 7 digits, उसमें से भी 2 digits for decimal places. Like 5,000.50.
check. Here we have applied a constraint on fees column. All these are column level constraints. Check. And then in brackets we write a condition. For example, fees greater than 500. So what does it mean? Fees greater than 500. बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? Fees greater than 500 means whenever a user enters data in table, this constraint will check whether data for fees is greater than 500 or not. Theoretically, if fees is less than 500, मान लो किसी ने 400 फीस दी, then it should display an error. Theoretically error होना चाहिए, but this is a flaw in MySQL. वो error नहीं दिखाता है. Email varchar 40 unique. What does it mean? This is also a constraint. It means every email should be different. So you can say it is just like primary key. Yes, it is just like primary key. There is only one difference. We can apply unique on more than one column in a table, but primary key can be applied only on one column of a table. प्राइमरी की एक ही कॉलम पर हम लगा सकते हैं, यूनिक एक से ज्यादा पे लगा सकते हैं. स्ट्रीम varchar 40 डिफॉल्ट साइंस. सो डिफॉल्ट इज यूज लाइक दिस. यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान रखना. यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं है. इट मीन्स इफ somebody is not entering data in stream, किसी ने स्ट्रीम को खाली छोड़ दिया, by default this will be there. I will show it to you. डोनेशन एंड 7 डिफॉल्ट 100. ये इंटीजर है इसलिए सिंगल कोट्स नहीं आएंगे. ये varchar था इसलिए सिंगल कोट्स आ गए. नाउ लेट अस सी. हमने टेबल बनाई, डिस्क्राइब स्टूडेंट करके देखा तो ये फील्ड्स आ गई, ये इसके टाइप आ गए और ये कंस्ट्रेंट्स की डिटेल्स आ गई. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ा सा जल्दी देखना, टाइम जल्दी से भाग रहा है. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. बहुत ध्यान से देखना. Insert into student values and I have given some values, not all values. How many columns are there? 1 2 3 4 5 6. तो इसकी डिग्री 6 हो गई. 6 columns are there, but I have written values for only 1 2 3 and 4. 1 Raj 400 and Raj 123 at gmail.com. Error. Definitely it will show an error. Column count does not match value count. बाकी दो कहाँ हैं? अब यूजर ने सोचा या मैंने सोचा कि बाकी दोनों साइंस और 100 ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेनी चाहिए, पर इसमें एरर आ गया. व्हाई? इन दीज केसेस यू नीड टू स्पेसिफाई नेम्स ऑफ फील्ड्स आल्सो. अब देखिए सेकंड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इसके बाद ब्रैकेट में आप फील्ड के नाम भी बताइए. यू शुड टेल द नेम्स कि किसके लिए डेटा दे रहे हो. रोल नंबर, एस नेम, फीस, ईमेल, फिर सारी वैल्यूज आपने डाली. अब ये ओके हो गया. 1 रो अफेक्टेड. सी सेलेक्ट एसटी फ्रॉम स्टूडेंट. ये डेटा आ चुका है आपका. रोल नंबर 1 राज 400, ईमेल आईडी, स्ट्रीम की डिफॉल्ट वैल्यू आ गई और डोनेशन की भी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई. आई थिंक इट इज क्लियर. पर अगर आप सारी वैल्यूज दे रहे हैं, देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई नेम्स ऑफ द फील्ड्स. वैल्यू से पहले जो नेम दिए थे ऊपर वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. आज भी कुछ बच्चे एब्सेंट. मोनिका इज नॉट देयर. मोनिका, आदित्य, ध्रुव, गर्व. गर्व तो आया था शायद. गर्व, आर यू प्रेजेंट? सर वो नेट बंद हो गया था बीच में. ओके, ठीक है. यस सर. ओके. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. यहाँ देखिए जल्दी से. वैल्यूज में मैंने क्या लिखा है यहाँ? 1. और 1 तो ऑलरेडी था रोल नंबर, तो एरर आना चाहिए.
बाकी डेटा छोड़ दो अभी। इंसर्ट इनटू वैल्यूज 1, तो देयर इज अ डुप्लीकेसी है, मैं डुप्लीकेसी करना चाह रहा हूँ, एरर आ जाएगा, एरर 1062 डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी। अगर प्राइमरी की नहीं लगाई होती तो ये एरर नहीं आता। सो दिस इज हाउ MySQL प्रिवेंट्स डेटा रिडंडेंसी और डेटा डुप्लीकेसी। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 की जगह 2 कर दिया, बाकी सारा डेटा दिया है, सिलेक्टेड नहीं दिया, सारा डेटा दिया, कॉमर्स एंड 200। तो देखिए 1 रो अफेक्टेड, सेकंड रो भी इंसर्ट हो गई जब आप डिस्प्ले कराएंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। Cartesian product also refers to as cross join. It returns all the rows in all the tables listed in the query. इस लाइन को पढ़िए, it returns all the rows in all the tables listed in the query. हम दो टेबल पे काम करेंगे अभी। Each row in the first table is paired with all the rows in the second table. Hardly 10 minutes left, थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। This happens when there is no relationship defined between the two tables. ये ध्यान रखना, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। When there is no relationship defined between the two tables. रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं वो वेयर क्लॉज में लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा अगर टाइम बचा तो। Now there are two definitions once again. Degree is the total number of attributes or fields. ठीक, ध्यान रखना। कार्डिनलिटी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज। तो कोई एक डेफिनेशन याद कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, नाउ सी दीज एग्जांपल्स। MySQL select asterisk from student 10th A, इसमें डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। देयर आर 3 कॉलम्स। ऑल्सो इन select asterisk from student 10th B, there are 3 columns and 3 rows. So cardinality of student 10th A is 3. Degree of student 10th A is also 3. Similarly for student 10th B, दोनों चीजें 3 हैं। Now this is your Cartesian product. Select asterisk from student 10th A, comma student 10th B. कॉमा करके हमने ये बताया कि दोनों टेबल से डेटा लेना है। अब दोनों टेबल को MySQL कंबाइन करता है, तब जाकर के एक बड़ी टेबल बनती है, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कॉम्बिनेशन होता है, देखिए यहाँ पे 1 अमन, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ, 1 अमन 87, 1 दिनेश 77। तो स्टूडेंट 10th A का ये पहली रो वो दिनेश यानी कि स्टूडेंट 10th B की पहली रो से कंबाइन हो गई। तो ये फर्स्ट लाइन आ गई, मैं इसको अभी काट के दिखा रहा हूँ। ये आपकी फर्स्ट रो तैयार हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। सेकंड रो कैसे तैयार होगी? सेकंड रो ऑफ फर्स्ट टेबल विल बी कंबाइंड अगेन विद फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट टेबल। तो आकाश विद दिनेश, सिमिलरली फरदीन विद दिनेश। तो ये बना कॉम्बिनेशन। अब दोबारा से कॉम्बिनेशन बनेगा, अमन विद दिवाकर, आकाश विद दिवाकर, फरदीन विद दिवाकर। सिमिलरली अमन विद फरदीन, आकाश विद फरदीन, फरदीन विद फरदीन। दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि इसको लिख करके दिखाओ, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये बताने के लिए मैंने इस डेमो को यूज किया। नाउ कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट 10th A एंड 10th B, यानी कि इस बड़ी टेबल का हमें कार्डिनैलिटी निकालनी है। स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। तो क्या करेंगे, वी जस्ट मल्टीप्लाई रोज ऑफ स्टूडेंट 10th A by rows of student 10th B. It is 3 into 3, 3 3s are 9. So 9 is the cardinality of this big table of this Cartesian product. डिग्री कैसे निकालेंगे? डिग्री प्लस करके निकालते हैं। डिग्री ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी 3 + 3। कितने कॉलम्स हैं, दोनों को ऐड कर दो। एंड यू कैन सी आउटपुट ऑल्सो ना, ये जो आउटपुट आपके सामने आ रहा है, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स कितने हैं? 6 है ना। दैट इज वाई डिग्री ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज 6। प्लस करके डिग्री आती है, मल्टीप्लाई करके कार्डिनैलिटी आती है।
मल्टीप्लाई करते हैं रोज को, देयर वर 3 रोज in student and they, and there were 3 rows here, 3 3s are 9. Next, 2 more methods of partition product, थोड़ा जल्दी से देखते हैं. We can write select asterisk from student 10th, कॉमा लगाने की जगह हम क्रॉस ज्वाइन भी लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट देखिए, हम क्रॉस ज्वाइन की जगह कार्टेशियन ज्वाइन भी लिख सकते हैं. सो दीज वर 2 more methods of कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी टेबल बनाने के लिए नहीं आएगी एग्जाम में. नॉर्मली कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्डिनलिटी और डिग्री वगैरह पूछा जाता है. ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड आई थिंक वी हैव 5 minutes लेफ्ट. थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे तो आपको फोकस करना पड़ेगा. सी, देयर आर 2 tables, स्टोर एंड सप्लायर. This store contains all this data, supplier contains this data. If you see S code of these two, see this S code and see this S code. 21, 23, 22, यहाँ देखिए 23, 21, 21, 21, 22, और कोई नंबर है क्या? 20 था क्या? 19 था क्या? नहीं था. It means this table supplier is having primary key S code and this store is having S code which contains data only from this table. इसके अंदर जो डेटा है उसी से मैच करता हुआ डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा. This is called setting up relationship. रिलेशनशिप सेट करना इसको बोलते हैं. इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाकर रिलेशनशिप सेट की जाती है. एंड इन दिस केस दिस इज योर प्राइमरी की. तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इस वाले एस्कॉर्ट को? दिस विल बी योर फॉरेन की, क्योंकि ये फॉरेन बाहर की टेबल से डेटा मैच करेगा. सपोज किसी ने 38 लिख दिया यहाँ पर और 38 यहाँ है नहीं सप्लायर में, तो एरर मैसेज आ जाएगा. ये तभी आता है जब हम फॉरेन की सेट करते हैं. सेट कैसे करते हैं अभी नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा एग्जाम में. नाउ सी हाउ टू सेट रिलेशनशिप. थर्ड देखिए, सेलेक्ट आइटम कॉमा एस नेम. ठीक, फ्रॉम स्टोर एस कॉमा सप्लायर पी. स्टोर कॉमा सप्लायर भी लिख सकते थे. तो ये हुआ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब एस और पी का मतलब हुआ शॉर्ट नेम स्टोर का एस हो गया, शॉर्ट नेम सप्लायर का पी हो गया. नाउ वी शुड राइट लाइक दिस वेयर एस डॉट एस कोड इज इक्वल टू पी डॉट एस कोड. दोनों के एस कोड को मैच कराना है, इक्वल टू का साइन लगाना है. दिस इज हाउ वी क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स. दोनों टेबल में इक्वल टू की कंडीशन लगाने से इसको बोलते हैं इक्वी ज्वाइन. तो हमने इक्वी ज्वाइन कंडीशन लगा दी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में. अगर हम ये सब नहीं लिखते ये वेयर के बाद का, तो ये सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता, विच इज ऑफ नो यूज, कभी भी एग्जाम में नहीं आता. तो कंडीशन हमेशा ऐसे लगाई जाती है. दिस इज हाउ टू सेट रिलेशनशिप. नाउ लेट अस सी आउटपुट ऑफ ऑल दीज. Select count distinct S code from store. ध्यान रखना, distinct S code का मतलब different S code, उनकी काउंटिंग करनी है. तो देखते हैं S code कहाँ है, कौन सी टेबल है? स्टोर. तो लेट अस कम टू दिस स्टोर. तो ऑब्वियसली 3 ही होंगी क्योंकि ये सारा डेटा हमने अभी अभी तो चेक किया. तो आंसर इज 3. अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो आप क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. आंसर would have been 7 instead of 3. तो distinct का मतलब होता है different. Select rate into quantity. यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो जो रेट है और जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आएगा, like 60 into 8 from store. But here it is condition where item number is equal to 2004. 2004 कहाँ है भाई? ये रहा 2004. और इसमें ये हम सेलेक्ट करेंगे 110 into 8 तो हो गया 880. तो दिस इज योर आउटपुट. क्लियर. फोर्थ, थर्ड बाद में डिस्कस करूंगा. फोर्थ, सिलेक्ट मैक्स लास्ट बाई. लास्ट बाई ये रहा. तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपकी है 24 Feb. ठीक है, so this is the maximum value. Now see this third one.
सुखदेव अब आया है, हाउ कैन आई अलाउ हिम टू ज्वाइन? सुखदेव शर्मा, अच्छा दोबारा से किया उसने, ओके। सी वेयर s डॉट s कोड इज इक्वल टू p डॉट s कोड, तो ये तो हुई इक्वी ज्वाइन कंडीशन। और एक कंडीशन है यहाँ पर, आइटम नंबर इज इक्वल टू 2006। लेट अस मूव टू दिस आइटम नंबर 2006। कहाँ पर है? ये रहा 2006। इसमें क्या डिस्प्ले करना था? आइटम ने एंड एस नेम। तो आइटम कहाँ है इसमें? आइटम है जेल पेन क्लासिक एंड योर एस नेम। जेल पेन क्लासिक का एस नेम माइक कहाँ बंद कर दिया से? अरे अपना। अब 2 मिनट रह गए हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जेल पेन क्लासिक तो आ गया आइटम नेम। अब एस नेम कहाँ से आएगा? सप्लायर से आएगा। दोनों कंडीशन दोनों ज्वाइन हो रखी हैं। एस नेम, लेट अस सी एस नेम ऑफ 2006। अब कैसे पता लगेगा? जेल पेन क्लासिक का जो एस कोड है दैट इज 21। ठीक, तो अब हम 21 पर जाएंगे, दिस 21।